Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are good and studying at your home. In previous class, we have discussed about how to construct an angle, and we see that various type of angles, and we construct also a 60 degree, 90 degree. Now today we will continue to construct the angles, and we will solve our next exercise, which is 15.2. In 15.2 we have already done question number 1 and 2, and question number 3 is just measuring the angles. There are some angles are constructed in your book. You have to just measure. Okay, so you can measure the those angles by using your protractor and write the angle, that the degree of the angles. Now in question number 4 there are some degrees, some measurements to construct the angles. Now we will try first 65 degree. 65 degrees, which type of angle? Tell me, which type of angle is 65 degree? You know that if an angle is less than 90 degree and greater than 0 degree is called acute angle. So it is an acute angle because it is less than 90 degree and greater than 0 degree. To construct 65 degree angle, you have to first draw a line and name both points A and B. You can name M and N also. You can name P and Q also. Okay? And you all know that frame your protractor like this. मिडिल पॉइंट को आप किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट फ्रेम कर लीजिए, एंड जीरो की जो लाइनिंग है आपके ठीक लाइनिंग पे एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस. ओके, नाउ वेयर इज 65 डिग्री? यू कैन सी दैट देयर इज 0, 10, 20, 30, 60, 70, 80, बट देयर इज नो 65 डिग्री. So how can you construct? But between 60 and 70 there are 10 lines. There are 10 lines because it means that there are 10 parts between 60 and 70, and one part, one line means 1 degree. It means that after 60 you can read it as 61, 62, 63, 64, 65. The greater line, the bigger line is indicated 65. ओके, लो आप अपने प्रोटेक्टर में जब देखेंगे तो 60 और 70 के बीच में आपको 10 लाइंस ड्रॉ दिखेंगी. उसमें से ठीक बीचों बीच की जो लाइन होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, वही 5 है आपका, क्योंकि टोटल 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. ओके, तो 60 और 65 के बीच में ऐसे जो ये लाइन है 65 वाला पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए. एंड नाउ join B to this point. You can name this point as C. Now this is your required figure for 65 degree. Understood? Now let's draw 78 degree. 78 degree. Tell me which type of angle is 78? Very good. This is acute angle, as acute as you all are. Acute angle is as acute as you all are. Okay? Less than 90 degree, so it is called an acute angle. First draw a single line. Same process. Frame your protractor like this at any point and find where is 78. 78 should be between 70 and 80. 70 and 80, less than 80 and greater than 70. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here is 78. 78 and name them A, B, C. This is C, and join B to C. B to C like this.
like this, B to C. Use your protractor and draw, construct. This is 78 degree. 78 degree. You can write here 78 degree. If you want to write the angle name, then angle name should be like this: angle ABC, because on the point B is angle formed. पॉइंट बी पे ही एंगल फॉर्म हुआ है, इसलिए बी को मिडिल में रखेंगे. ए बी एंड सी इज इक्वल टू 78 डिग्री. यू कैन राइट इट एज like it. Understood? So next, 90 degree. To construct an angle of 90 degree, we have to first draw single line. Everyone please draw a single line and name A and B. Same process, frame your protractor like this and mark 90 degree and name this point as C. Join B to C. Join B to C using your scale. And this will be your angle of 90 degree. What is the name of 90 degree angle? It is right angle. Okay. Now next one is 125 degree. Everyone please tell me, which type of angle is it? 125 is which type of angle? This, very good. This is an obtuse angle. Why? Reason is because it is greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay. Now to construct an angle of 125 degree, firstly same process, draw a single line like this, straight line A and B. अब हम क्या करते हैं, B को ना चूज करके A को चूज कर लेते हैं. ओके, क्योंकि दोनों पॉइंट से हम एंगल फॉर्म कर सकते हैं. B से तो हमने सीख लिया, अब हम A की बारी है. ओके, चलो तो A को भी ऐसे आप फ्रेम करेंगे. A पॉइंट को ठीक पॉइंट पे मिलाएंगे, इधर 0 डिग्री को लाइन पे एकदम स्ट्रेट रखेंगे. आपका ऐसा प्रोटेक्टर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. वेरी गुड. ओके, चलिए अब रही बात 125 डिग्री, आपको यहां भी दिखाई दे रहा है और इधर भी, तो कौन सा लेंगे? अब ऊपर वाला नहीं, क्योंकि जब हमने बी लिया था तो ऊपर वाले को हम लेकर के चल रहे थे. अब हम नीचे वाले को लेंगे, क्योंकि हमें 0 चाहिए. पहले 0 कहाँ है? 0 यहाँ है नीचे वाले पे. तो 0 10 ऐसे करते आएंगे. 125 के लिए आपको 120 और 30 के बीच में आना होगा. एंड आप इन दोनों के बीच में देखिए, ये पॉइंट आपका 125 होगा. लीजिए और इसको आप लिख दीजिए, क्या है? C. Okay, now let's join A and C by using your scale. I am using my protractor, but you can use your scale. Okay, like this. And now this is 125 degree angle. You can write it as angle, बिकॉज क्योंकि ये ए पॉइंट पे बना हुआ है, तो ए को आपको मिडिल में लिखना होगा एंड बाकी को सी एंड बी को इसके किनारे किनारे, सी ए बी. नाउ दिस इज 125 डिग्री. एंगल सी है, एंगल का सिंबल बनाएंगे, फिर उसके बाद सी ए बी इज इक्वल टू 125 डिग्री लिखेंगे. ओके, चलिए, वेरी गुड. 180 डिग्री. नेक्स्ट वन इज 180 डिग्री. 180 degree is a straight angle, and straight angle means straight line. So let's just draw a straight line. Whenever anyone asked to draw a straight angle, just draw a single line. ठीक है, make a point in the middle of line, name A, B and C. And now this will be the angle.
दिस विल बी द एंगल 180 डिग्री। ये आपका 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 220 डिग्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, बिकॉज टू फॉर्म 220 डिग्री फर्स्टली, ठीक है, यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन। अगर आप अपने प्रोटेक्टर पे देखेंगे, तो आपको 0 से करके 180 तक के आपके नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक ना। एवरीवन सी, 0 से लेकर के 180 तक के नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो 180 से ज्यादा है ही नहीं, इवन 200 भी नहीं है, 190 भी नहीं है। तो फिर हम 220 डिग्री का जो एंगल है वो इस प्रोटेक्टर की मदद से कैसे बनाएंगे? तो इसका जवाब ये है, बिकॉज 220 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल, एक रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? उल्टा बनता है, एंगल के पीछे बनता है, ठीक है। जैसे कोई भी एंगल अगर है, ये एंगल हमारा है, इसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। अगर हमने ये एंगल बना लिया तो ये वाला पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको भी मेजर करेंगे और इसको भी मेजर करेंगे, ये भी एक एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 220 डिग्री कुछ ऐसा ही होगा। तो टू कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एंगल you have to do some calculation, and what are these calculation? ये calculation क्या है? तो firstly you have to find the reflex of this reflex angle by doing subtraction. You have to subtract 220 degree फ्रॉम 360 डिग्री, द होल एंगल। आप होल एंगल में से, क्योंकि समझिए इसको क्या है, ठीक है, आप ये पूरा एंगल क्या है, ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये हिस्सा जानना है कि कैसे बनेगा, तो अगर आप ये हिस्सा बना लेंगे तो भी तो काम चल जाएगा। आपको ये हिस्सा बनाने आता है, जैसे ही आप ये बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, ये पूरा 360 होता है, ये मान लीजिए कि ये 220 डिग्री हो गया, तो आप इसको पता कर लीजिए ये कितने का है। तो 360 में से 220 को माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल कितने का है, और जब वो पता चल जाएगा तो हम आराम से उसको फॉर्म कर लेंगे और ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो 360 में से इसको जब आप माइनस करेंगे, 0, 6 - 2 4, 3 - 2 1, नाउ this is converted into 140 degree, and 140 degree is an obtuse angle, and you can form using this protector. Using your protector you can construct an angle of 140 degree. अब ये 180 से लेस है तो हम बना सकते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। चलिए बना लेते हैं। ड्रॉ करिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, 140 डिग्री आपको बनाना है। आप ऐसे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को लेकर के अपने प्रोटेक्टर को ऐसे फ्रेम करिए, ठीक है। फाइंड आउट करिए किधर है 140 डिग्री, तो यहाँ पे है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मैच कर लिया, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया। ये तो 140 है, बट अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि 140 डिग्री, अरे 220 डिग्री का एंगल बनाना है, बट इट इज 140 डिग्री। देन ये 140 डिग्री, बट इसका रिफ्लेक्स जो पीछे वाला हिस्सा है, जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कितने का होगा? ये होगा आपका 220 डिग्री। तभी नहीं ये दोनों मिल करके 360 बना लेंगे। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको पीछे का एंगल ऐसे बनाना है 220 डिग्री, और ऐसे रिफ्लेक्स एंगल बनता है, ठीक है। आपके बुक में और भी रिफ्लेक्स एंगल दिए गए हैं, गिवन है, आप उनको होमवर्क में ट्राई करिए। रिफ्लेक्स एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले उसको 360 डिग्री में से माइनस कर लीजिए, फिर आपको एक एंगल मिल जाएगा। वो हो सकता है कि एक्यूट हो, वो हो सकता है कि ऑब्ट्यूज हो,
वो आपको एक एंगल मिल जाएगा और जैसे वो एंगल मिलेगा उस एंगल को फॉर्म कर लेंगे जैसे आप फॉर्म करते आए हैं, और फिर जस्ट उसका उल्टे वाले एंगल को डिनोट कर देंगे, उसके पीछे वाले एंगल को, रिफ्लेक्स वाले एंगल को, और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट वन इज मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू, क्या होगा, एवरीवन नोस। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज 90 डिग्री? ओके, 90 degree. You can write it here, 90 degree. Next one is measure of an acute angle is between, acute angle का जो मेजरमेंट होता है वो किसके किसके बीच का होता है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो acute एंगल होता है वो 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस होता है, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, सो इट इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. You can write. Next one is measure of an obtuse angle is between. By the same process, you all know that the obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. So it is between 90 degree and 180 degree. Next one is an acute angle is always than a right angle. एक acute angle right angle से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है कि इक्वल होता है? इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, अब 90 डिग्री से लेस ही तो होता है. ठीक है, हम कहते हैं कि एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो यू कैन राइट लेस हियर, ऑलवेज लेस देन अ राइट एंगल. नेक्स्ट वन इज अ राइट एंगल इज ऑलवेज देन एन ऑब्ट्यूज एंगल. राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल से क्या होता है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री and 90 degree is always less than obtuse angle, less than obtuse angle, because you all know that obtuse angle is always greater than right angle. It means 90 degree. 90 degree से वो बड़ा होता है obtuse angle, तो obtuse angle से 90 degree क्या होगा? छोटा होगा. So right here less than an obtuse angle. Understood? Okay, very good. Now it's homework time. Write your homework. Do remaining questions. Remaining questions. Questions of 15.2. 15.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए, बच गए, उन सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे. उसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी है कुछ एंगल्स का, और फिल इन द ब्लैंक्स भी है, और मेजरमेंट भी है एंगल्स का. ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा. ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, एंड तब तक के लिए थैंक यू क्लास.